سب سے پہلے آپ کو بتائیں مشرق وسطی جنگ، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور نیتن یاہو میں فون پر گرما گرمی۔ امریکی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کو جنگ سے پہلے کے دعوے یاد دلائے، اور امریکی میڈیا کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حملہ ہوتے ہی ایران میں حکومت گرے گی۔ جے ڈی وینس حکومت کی تبدیلی سے متعلق حقیقت پسندانہ موقف رکھتے تھے۔ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کا مشن جے ڈی وینس کو سونپ دیا ہے، امریکی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کا راگ، دوسری طرف جنگ کی آگ۔ مشرق وسطی کی جنگ میں امریکہ کی دوغلی پالیسی، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے صفاقانہ حملے جاری ہیں۔ اصفہان میں رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 26 شہری جاں بحق ہو گئے، 7 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں۔ قم شہر میں بھی 6 شہری امریکی اور اسرائیلی درندگی کا نشانہ بنے۔ ہلال احمر ایران کے مطابق تہران میں بھی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ 4 ہفتوں سے جاری جنگ میں 1937 ایرانی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایران کے بھی منہ توڑ جوابی حملے، اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ کویت، بحرین اور قطر میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کرنے پر ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق دارالحکومت ریاض پر 6 میزائل داغے گئے، 2 کو فضا میں تباہ کیا گیا، 4 غیر آباد علاقے میں گرے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری، اصفہان میں رہائشی عمارتیں نشانہ، 7 خواتین اور 7 بچوں سمیت 26 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 1900 شہادتیں ہو چکی۔ اسرائیلی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ کویت کی بندرگاہ پر ڈرون حملہ، قطر میں پہلی بار ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری۔ جنگ کی آگ بجھانے کی کوششیں، پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، وزیر اعظم اور کویتی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، برادر ملک پر حملوں کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ کویتی ولی عہد کا ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت پر اتفاق۔ وانگ جی کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ 15 نکاتی امن منصوبہ اسلام آباد کے ذریعے تہران تک پہنچایا گیا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کی تصدیق، نیو یارک ٹائمز تفصیلات سامنے لے آیا۔ لکھا پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسائی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر سے رابطے میں ہیں۔ شہباز شریف نے ایک ہفتے میں 20 عالمی رہنماؤں کو فون کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عباس عراقچی اور دیگر وزرائے خارجہ سے رابطے کیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے بھی تصدیق کر دی، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے، دونوں ملکوں کے نمائندوں کی پاکستان میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا اعتراف۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے معطل، ٹرمپ کا تہران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھنے کا دعویٰ، کہا ایران کی درخواست پر کارروائیاں مؤخر کی، ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے، ایرانی قیادت ختم کر دی، جو زندہ ہیں ان کے ٹھکانوں کا بھی علم ہے، امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں، جن ممالک کو ضرورت ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف، کہا پاکستانی وزیر اعظم اچھے انسان ہیں، انہوں نے کہا میں نے ایک ایسا مسئلہ حل کیا جس سے 1 کروڑ انسانوں کی جان بچ گئی۔ دو ایٹمی طاقتوں نے ایران پر غیر قانونی جنگ مسلط کی، سفارتی عمل کے دوران حملہ کیا گیا، امریکہ اور اسرائیل بچیوں کے قتل کے ذمہ دار، مناب میں اسکول کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں تھا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب، کہا نہتے عوام پر بلا تفریق بمباری کی جا رہی ہے، رہائشی عمارتوں، تیل اور پانی کے ذخائر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ، واشنگٹن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو آگے بڑھنے کا راستہ نکل سکتا ہے، ایرانی عہدیدار کی رائٹرز سے گفتگو۔ ایران کے تابڑ توڑ حملے، اسرائیل میں صف ماتم، صہیونی میئر اپنی ہی حکومت پر برس پڑا، اسرائیلی فوج میں اہلکاروں کی شدید کمی، صہیونی آرمی چیف نے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا، کہا کئی محاذ کھولنے کے باعث فوج میں افرادی قوت کی کمی،
तवज्जो ना दी तो फौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अमरीकी फौज में भी अफरादी कुव्वत की कमी, हुकाम ने भर्ती के लिए उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी की कड़ी तनकीद, कहा हम पर एक पागल शख्स मुसल्लत है। सदर ट्रंप अमेरिका के डिक्टेटर बनना चाहते हैं, हमें ये तक मालूम नहीं इस जंग का असल मकसद क्या है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले बुझाने का मिशन, पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत की वलीअहद का फोन। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कुवैत पर हमलों की शदीद मजम्मत की। मुश्किल हालात में कुवैत के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कुवैती क़यादत को मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वलीअहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत भी की। कुवैती क़यादत के नाम शहबाज शरीफ के इजहार यकजहती के हालिया खत पर इजहार तशक्कुर भी किया। हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश भी जाहिर की। वज़ीर आज़म ने कुवैती वलीअहद का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का राबता। सोशल मीडिया पर पैगाम में इसहाक डार ने बताया, अपने दोस्त चीन के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बात हुई। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत पर इत्तेफाक किया गया। मुज़ाकरात की बहाली, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रास्तों की सिक्योरिटी पर भी इत्तेफाक किया गया। इसहाक डार ने मज़ीद बताया कि चीन ने पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की और अपनी मुकम्मल हिमायत से आगाह किया। गुफ्तगू में इत्तेफाक किया गया कि तनाज़ात, मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने की कोशिशें जारी रखी जाएँ। खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा मसला हल किया जिससे 1 करोड़ इंसानों की जान बच गई। Solved other ones in one day that have been going for 32 years. We stopped one that was starting. It was already started. India and Pakistan, and the Prime Minister of Pakistan, a very fine gentleman, said President Trump solved something that was going to cost 10 million lives. That was going to cost a lot of lives, 2 nuclear nations. And those were complicated, but we got them done quickly. ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने शदीद खतरात के बावजूद तेहरान की मार्केटों का दौरा किया। शहरियों से रोजमर्रा के मामलात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। ईरानी हुकाम ने सदर मसूद पज़ेश्कियान को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। शहरियों ने सदर के साथ तस्वीर भी बनवाई। और ईरानी पासदारान इनकलाब का मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान लिख दिया। पाकिस्तान के अवाम से इजहार तशक्कुर करने वाले मिसाइल हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तवानाई बहरान से निपटने के लिए अहम इकदाम। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सब्सिडी देने का फैसला। 2 और 3 व्हीलर्स को मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडाइज पेट्रोल दिया जाएगा और मोटरसाइकिलों को माहाना 20 लीटर तक सब्सिडाइज पेट्रोल देने की तजवीज़ है। 800 सीसी तक गाड़ियों के लिए सब्सिडाइज पेट्रोल फराहम करने का फैसला ना हो सका, जबकि वजारत IT ने एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए 24,000 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की खरीदारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें मांग लीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मोबाइल फ़ोन्स खरीद कर पेट्रोल पंप्स को देंगी और मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप्स को 24,000 मोबाइल फ़ोन्स फराहम किए जाएंगे। हर पेट्रोल पंप पर 2 नोजल सब्सिडाइज पेट्रोल के लिए मुकर्रर की जाएंगी। वजारत IT की तैयार करदा मोबाइल ऐप टेस्टिंग के हतमी मराहिल में है। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त। KP के जिला कोहाट में गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। कुएं से यौमिया 2 करोड़ 65 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। गैस का नया जखीरा टल ब्लॉक में मौजूद कुएं से मिला है। OGDCL ने स्टॉक एक्सचेंज को पेशरफ्त से आगाह कर दिया। OGDCL ने दरियाफ्त को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कुएं में PPL, POL,
MOL और GHPL भी हिस्सेदार हैं। दरियाफ्त से टल ब्लॉक में दीगर कुओं की कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ गए हैं और गैस का नया जखीरा मिलने से मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी में इजाफा होगा। तलब और रसद के फर्क में भी कमी आएगी। अब आपको बताएं कि ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान के खुसूसी इक़दामात। हुकूमत का बंदरगाहों के मजमूई गुंजाइश में इजाफे का फैसला। कराची पोर्ट पर 8000 कंटेनर्स की आमद, 3500 रवाना। कराची पोर्ट पर 4500, पोर्ट कासिम पर 3485 कंटेनर्स मौजूद। कवानीन में नरमी के बायस कार्गो हैंडलिंग में गैर मामूली इजाफा। हुकूमत की SRO के जरिए ट्रांसशिपमेंट के कवायद में तरमीम ऑफ डॉक्यूमेंट पर कंटेनर्स की गुंजाइश 60,000 तक बढ़ा दी गई है। और आपको बताएं कि ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान के खुसूसी इक़दामात। हुकूमत का बंदरगाहों की मजमूई गुंजाइश में इजाफे का फैसला। कराची पोर्ट पर 8000 कंटेनर्स की आमद, 3500 रवाना। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान को आलमी बैंक से 10 अरब 70 करोड़ रुपए का नया कर्ज मिलने का इम्कान। 38 करोड़ डॉलर के मसावी ये रकम तवानाई मंसूबे पर खर्च की जाएगी। पावर सेक्टर प्रोजेक्ट की मजमूई मालियत तकरीबन 70 करोड़ डॉलर है। दस्तावेज के मुताबिक मंसूबा 2026 से 2035 पर मुहित 10 साल का प्रोग्राम का हिस्सा है। मोचियारी से रहीम यार खान तक 500 kV की बड़ी ट्रांसमिशन लाइन भी प्रोजेक्ट में शामिल है। बिजली के निज़ाम में बेहतरी, बैटरी स्टोरेज और नई ट्रांसमिशन लाइन भी मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबे में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक भी मुआवनत फराहम करेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में बिलों की कम वसूली, सिस्टम नुकसानात और ट्रांसमिशन रुकावटों की निशानदेही भी कर दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में बिजली की फराहमी ज्यादा काबिल एतमाद बनाने पर जोर दिया। निजी शोबे की शमूलियत का फरोग, तवानाई के इदारों में गवर्नेंस बेहतर करने का भी मुतालबा किया गया है। मकबूजा कश्मीर की 3 खवातीन हुर्रियत रहनुमाओं आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिद नसरीन को सजाओं के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एहतमाम मुजाहिरा बुरहान वानी चौक से शुरू हुआ। बड़ी तादाद में खवातीन भी शरीक हुई। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी और दीगर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी सियासी कारकुनों के खिलाफ जालिमाना सजा का नोटिस ले। भारत काले कवानीन के जरिए आज़ादी की आवाज़ दबाना चाहता है। कश्मीरी अवाम दबने वाले नहीं हैं। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत का गंदम खरीदारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। जकुम अप्रैल से सूबे भर में सरकारी सतह पर खरीदारी का आगाज होगा। इस साल गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। मोनस अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत गंदम की खरीदारी के लिए तैयार। 3500 रुपए इमदादी कीमत भी मुकर्रर कर दी। यकुम अप्रैल से गंदम खरीदारी मुहिम शुरू होगी। 1 अप्रैल हमने डेट फिक्स की है सिंध में गंदम की प्रोक्योरमेंट की बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जो हमने रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने विद सपोर्ट प्राइस वो 3500 रुपये है 40 kgs पे। अब फूड डिपार्टमेंट उस 45 लाख का 10 लाख प्रोक्योर करना जा रहा है और पहली दफ़ा 3,20,000 से ज़्यादा फार्मर्स को बारदाना वो खुद लेके आएंगे, उनके अकाउंट्स में पैसे जाएंगे। वजीर खुराक सिंध ने बताया कि गंदम की खरीदारी में बेज़ाब्तगियां और चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। गुज़िश्ता साल की बेज़ाब्तगियों पर 9 अफसरान बरतरफ, 22 मुअत्तल और 40 से ज़ायद को शोकॉज जारी हो चुके। सूबाई वज़रा का कहना था कि नई पॉलिसी के तहत शफाफ खरीदारी, बेहतर ज़खीरा और आवाम को सस्ती गंदम की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। हुकूमत का रोशन डिजिटल अकाउंट का दायरा कार वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों कंपनियों को रोशन डिजिटल में सरमायाकारी की इजाज़त। गैर मुल्की शहरियों कंपनियों को नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्ट करने की मजाज इक़दाम। मालियाती मंडियों से रवाबत बढ़ाने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग का मजहर। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया की बड़ी और मुतहरिक कम्युनिटीज़ में शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत का रोशन डिजिटल अकाउंट का दायरा कार वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों कंपनियों को रोशन डिजिटल में सरमायाकारी की इजाज़त। गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों को नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करने की मजाज इक़दाम।